بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ چلیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، اسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف میں مکمل ایک واقعہ ذکر ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ سبھی اسے اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کریں۔ یہاں یہ بات جان لیں کہ وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا بلکہ دوسرا کوئی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ بادشاہ اس جادوگر کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ میری موت کا وقت کب قریب آ جائے، اس لیے آپ میرے پاس کوئی چھوٹے لڑکے کو بھیج دیا کریں تاکہ میں اسے اپنے جادو کی کلا سکھا سکوں، ورنہ موت کے ساتھ میرا یہ ہنر بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو بھی یہ بات مناسب لگی اور اس نے اپنے شہر کے ایک 10 سال کے لڑکے پر یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ جادوگر کے پاس جا کر اس سے اس کا علم سیکھے۔ بادشاہ کے حکم پر وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس کے پاس کئی گھنٹے بیٹھ کر جادو کے بارے میں سیکھتا۔ وہ لڑکا روزانہ جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تو اسی راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بزرگ اسے روزانہ بیٹھے نظر آتے۔ پہلے تو کئی دنوں تک وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ لڑکا ان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا اور ان سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو اللہ والے نیک بزرگ نے اس بچے کو دین کی بہت سی باتیں سکھائیں جو کہ اسے بہت زیادہ پسند آئیں، اور پھر وہ روزانہ جادوگر کے پاس آتے جاتے وقت تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت اور ان کی عبادت کے بارے میں باتیں سنتا۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس لڑکے کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر لگ جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے کو بہت ڈانٹتا، اور جب یہ لڑکا لوٹتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی، کہ جس کی وجہ سے گھر والے بھی بہت زیادہ غصہ ہوتے۔ آخر جب اس مسئلے کی شکایت اس لڑکے نے اللہ والے بزرگ سے کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اے بیٹا، تم دین سمجھنے کے واسطے اتنی قربانیاں دے رہے ہو، اس لیے تم ایک کام کرو کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں لگی تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ یہ میرے لیے ایک مصیبت کا سامان ہوگا۔ اللہ والے کی نصیحت پر اس لڑکے نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن راستے سے جاتے ہوئے اچانک بیچ سڑک میں ایک بہت ہی زہریلا سانپ آ کر بیٹھ گیا کہ جسے دیکھ کر سبھی لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں آزما کر دیکھوں گا کہ آخر جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ والے بزرگ۔ اور پھر اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے اور وہ نیک بزرگ جھوٹے ہیں تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے نے پتھر چلا دیا، لیکن اس پتھر سے سانپ پر ذرا بھی اثر نہ پڑا، بلکہ وہ اور زیادہ پھکارنے لگا۔ تو اس لڑکے نے دوسری بار آزمانے کے لیے ایک دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر وہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اب یہ کہہ کر جیسے ہی اس لڑکے نے پتھر چلایا تو سانپ کو لگتے ہی وہ مر گیا، کہ جسے دیکھ اس لڑکے کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے۔ اب اس لڑکے نے جا کر یہ بات ان اللہ والے بزرگ کو بتائی تو وہ اور بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹا، اب تم مجھ سے زیادہ بہتر بن چکے ہو، اس لیے آج سے تم بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس 10 سال کے لڑکے کو اللہ نے اپنی قدرت سے اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہر طرح کے مریض کو اللہ سے دعا کر کے بالکل صحیح کر دیتا۔ اس کے پاس چاہے جیسا بھی مریض آتا، وہ اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر جیسے ہی پھونکتا تو وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔
यहाँ तक कि ये खबर बादशाह के एक खास वजीर तक पहुंची। वो वजीर कुछ बीमारियों की वजह से आंखों से अंधा हो गया था, इसलिए ये खबर मिलते ही वजीर जल्दी से उस लड़के के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती कीमती तोहफे लाया हूँ, तुम इन्हें कबूल करो और मेरी आंखें ठीक कर दो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं, और आंखें मैं नहीं बल्कि मेरा अल्लाह ठीक करता है, इसलिए तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं दुआ कर दूंगा कि अल्लाह तुम्हारी आंखें ठीक कर दे। लड़के के कहने पर वजीर ने फौरन ईमान कबूल कर लिया। तो लड़के ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर जैसे ही दुआ की तो वजीर की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। सुभान अल्लाह। और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उस लड़के को गले से लगा लिया। उसके बाद जब अगले दिन वो वजीर बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह भी उसे देखकर हैरान रह गया कि आखिर मेरे नाबीना वजीर की आंखें कैसे ठीक हो गईं। तो उस वजीर ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, ये आंखें मुझे मेरे अल्लाह ने वापस की। ये सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि क्या तुमने मेरे अलावा भी किसी को अपना खुदा माना है? तो वजीर ने कहा कि हाँ, जिसको खुदा मानता हूँ वो आपका भी रब है और मेरा भी रब है, और उसी ने तमाम दुनिया को पैदा किया। अल्लाह अकबर। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि आखिर तुमको इस बारे में किसने खबर दी? तो वजीर ने जब इनकार किया तो बादशाह के हुक्म पर उस वजीर को बहुत ज़्यादा मारा गया। आखिर मजबूर होकर वजीर ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। वजीर के बताने पर उस लड़के को महल में बुलाया गया और फिर बादशाह ने गुस्से में उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इस नए दिन के बारे में किसने बताया? तो पहले तो उस लड़के ने इनकार किया, लेकिन बादशाह की तरफ से बहुत सख्ती पर उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। तो बादशाह ने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी महल में बुलाया और अपने वजीर के साथ खड़ा करके कहा कि तुम दोनों अपने दीन को छोड़कर मुझे अपना खुदा मान लो, वरना दोनों का बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन दोनों हजरात ने साफ इनकार कर दिया। तो बादशाह ने एक लकड़ी काटने वाला आरा मंगाकर उन दोनों को काटकर शहीद कर दिया। बादशाह समझ रहा था कि ऐसी दर्दनाक मौत देखकर ये लड़का खुद ही इस नए दिन को छोड़ देगा, लेकिन वो लड़का बराबर इनकार करता रहा। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने गुस्से में अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दो। बादशाह के हुक्म पर वो सिपाही जैसे ही उस लड़के को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे और उसे नीचे फेंकना चाहा, तो अचानक उस लड़के ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मेरी इन लोगों से हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने ये दुआ मांगी तो अचानक पहाड़ हिलने लगा और वो सभी वजीर पहाड़ से नीचे गिरकर मर गए। वो लड़का अकेले ही बादशाह के दरबार में पहुंचा। तो बादशाह ने पूछा कि आखिर मेरे वजीरों का क्या हुआ? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो गया। ये सुनकर बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने दूसरे कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इस लड़के को एक नाव में बिठाकर समुद्र के बीच फेंकाओ। बादशाह के हुक्म पर ऐसा ही किया गया, लेकिन जैसे ही वो सिपाही समुद्र के बीच उस लड़के को फेंकने लगे तो अचानक नाव इतना ज़्यादा डगमगाई कि वो सिपाही समुद्र में गिरे और अल्लाह ने फिर से इस लड़के की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। वो लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर और ज़्यादा परेशान हो गया। दरबार में पहुंचते ही उस लड़के ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, आप चाहे जो भी कर लें, मुझे कत्ल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। लेकिन एक तरीका है कि अगर आप उस पर अमल करो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ने पूछा कि आखिर वो क्या तरीका है? तो लड़के ने जवाब दिया कि आप एक मैदान में मुल्क के सारे लोगों को जमा करें और फिर एक बड़ी सी लकड़ी में मुझे बांध कर लटका दें और फिर दूर खड़े होकर एक तीर पर बिस्मिल्लाह रब्बी पढ़कर वो तीर मेरी तरफ चला दें। ऐसा करने से आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। बादशाह ने ऐसा ही किया कि सारे मुल्क के लोगों को जमा किया और फिर लड़के को लकड़ी में बांधकर उस पर जो लड़के ने बताया था वो पढ़कर तीर चलाया। तो वो तीर सीधे जाकर उस लड़के की गर्दन में लगा कि जिसकी वजह से उस लड़के की शहादत हो गई। लेकिन ये मंजर देखकर मैदान में खड़े सभी लोगों को यकीन हो गया कि बादशाह ने तीर चलाने से पहले जिस अल्लाह का नाम लिया वही हमारा असली खुदा है, कि जिसके नाम पर इस छोटे लड़के ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर उसी वक्त मैदान में खड़े हजारों लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, कि जिसे देख बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। आखिर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो भी अल्लाह के नाम पर ईमान लाया है मैं उन सभी को जलाकर ख़त्म कर दूंगा। और फिर बादशाह ने एक भड़कती आग जलवाई
कि जिसमें इन सभी ईमान वालों को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है उसे अल्लाह कई तरह से नवाजते हैं। नंबर 1, उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। नंबर 2, उसे कब्र के अजाब से महफूज रखा जाता है। नंबर 3, उसे क़यामत के दिन कोई भी घबराहट ना होगी। क़यामत में घबराहट ना होने का मतलब ये है कि और सभी इंसानों को तो हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन शहीद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उसने चाहे ज़िंदगी में कितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह के राह में शहादत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी खूबसूरती कायनात की हर चीज़ से बढ़कर होगी और उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने घर वालों में से 70 से ज़्यादा लोगों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जा सकता है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने शहीद बंदे की इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की, फरमाया कि ए लोगों, तुम मेरे शहीद बंदों को मरा हुआ मत कहा करो, बल्कि वो तो मेरे पास ज़िंदा है और मैं उसे अपने पास से रिस्क देता हूँ। इन सभी रिवायतों से मालूम होता है कि शहीद इंसान को अल्लाह बहुत ज़्यादा नियामतों से नवाजते हैं और हमारे सामने तो वो मुर्दा शक्ल में आते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये तो हमारे पास ज़िंदा होते हैं। मुर्दा तो वो लोग हैं कि जो अपने घरों में आम मौत मरते हैं। रिवायतों से मालूम होता है कि जो बंदा शहीद होता है उसके जिस्म में शहादत के वक्त ज़रा भी दर्द नहीं होता, वो सिर्फ हमें खून में तड़पता नज़र आता है, लेकिन हकीकत में उसे अल्लाह अपनी राह में शहीद होने का कुछ अलग ही मज़ा दे रहे होते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह सभी से पूछेंगे कि तुम में से कोई दुनिया में वापस तो नहीं जाना चाहता? तो सभी इनकार कर देंगे, लेकिन शहीद कहेगा कि या अल्लाह, मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दो ताकि मैं आपके लिए फिर से शहीद हो जाऊं और मुझे फिर से वही मज़ा मिले जो जन्नत में भी नज़र नहीं आता। रिवायतों से मालूम होता है कि अगर हमें किसी ब्लेड से थोड़ा सा भी कट जाता है, उतनी जगह से हमारी रूह हटती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ब्लेड या फिर चाकू छुरी से कहीं अगर हमारी उंगली कट जाए तो कितने ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उतनी जगह से हमारी रूह हटती है। तो जिस दिन हमारे पूरे जिस्म से रूह हटेगी तो फिर किस कदर तकलीफ़ होगी। लेकिन अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बंदा इन सभी तकलीफ़ों से दूर रहता है। उसे वो तकलीफ़ नहीं होती जो घर में रहते हुए मौत आने पर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सारी ज़िंदगी अल्लाह से शहादत तलब करते रहे और वो लोगों से कहा करते कि ए लोगों, अपने घरों में आम मौत मत मरना, वरना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि जैसे जिस्म को कैंचियों से काटने में होती है, और अगर शहीद होकर वफ़ात होगी तो रिवायतों के मुताबिक सिर्फ उतनी ही तकलीफ़ होगी कि जितनी एक चींटी के काटने से होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तो मन करता है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया और मुझे फिर से ज़िंदा किया जाए, और मैं फिर शहीद किया जाऊँ और मुझे फिर से ज़िंदा किया जाए, और मैं फिर शहीद किया जाऊँ और मुझे फिर से ज़िंदा किया जाए। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी की मौत इस हालत में हुई कि उसके दिल में शहीद होने का जज्बा भी ना हो, तो वो मुनाफिक होने का जज्बा भी ना हो, तो वो मुनाफिक होकर ही मरेगा। अब इन सभी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलिस्तीन में होने वाले हमारे फूल जैसे प्यारे बच्चे शहीद जो हो रहे हैं, अल्लाह को कितने ज़्यादा महबूब होंगे जब हम सब लोग उन प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी ज़्यादा मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं। तो जिस मुक़द्दस ज़ात के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वो अल्लाह उन्हें अपने पास कितना ज़्यादा लाडो प्यार से रखते होंगे। अल्लाह हम सभी को शहादत की मौत अता फरमाए और फ़िलिस्तीन के लोगों को सब्र। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ ज़रूर करें। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए चैनल पे बने रहें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।